تعالى في كلامه الحكيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرین، جمعہ کا دن ہے اور ہم نے کہا تھا کہ جمعہ کے دن درس کے بجائے جو لوگوں کے ڈاؤٹ ہیں، سوالات ہیں، انشاءاللہ جو اہم سوالات ہوں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا سگے بھائی بہن کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ اہم مسئلہ ہے یہ۔ دیکھیے، اصول اور فروع، اصول کا مطلب آپ کی جو جڑ ہے، آپ کی بنیاد ہے، جیسے ماں ہے، باپ ہے، باپ دادا پردادا اوپر تک جہاں تک آپ چلے جائیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اوپر تک اصول جو ہیں، باپ دادا پردادا، یہ اوپر تک جہاں تک ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے باپ کا خرچ اٹھائیں بھائی۔ آپ بیٹے ہیں تو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کی کفالت کریں، ان کا خرچ اٹھائیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع، نیچے بیٹا ہے، پوتا ہے، پرپوتا ہے، نیچے تک جتنا جہاں تک چلے جائیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ باپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری آپ کے بچوں کو پالنا ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بقیہ جو اصول اور فروع نہیں ہے، مثلا جیسے انہوں نے سوال کیا کہ سگا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جی ہاں، اس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے صدقات اور ہدیات سے نوازیں تاکہ وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارا بھائی اگر غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے اس کی کفالت کریں، اس کی مدد کریں، صدقات کے ذریعہ، عطیات کے ذریعہ۔ لیکن اگر وہ حقیقت میں زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بہنیں بھی ہیں، مثلا آپ کے گھر میں نہیں رہتی بہنیں، شادی شدہ ہیں، اب وہ کیا ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، تو ان کی بھی زکوٰۃ کے ذریعہ مدد کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کو اس کا ڈبل اجر بھی انشاءاللہ ملے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دوران قرآن نہیں، دوران تلاوت قرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کے درمیان میں اگر سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ اسی وقت کرنا ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سجدے کی آیت آ گئی تو اسی وقت آپ کو سجدہ کرنا ہے، چاہے آپ وضو سے ہوں یا نہ ہوں۔ مثلا نماز کے باہر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گھر میں، مسجد میں، دکان میں، کہیں بھی ہے، تو سجدے کی آیت آئی تو اسی وقت سجدہ کرنا ہے، بعد میں نہیں، کیونکہ یہ سببی عبادت ہے نا، سبب پایا گیا تو فوراً مسبب بھی پایا جانا چاہیے۔ سجدے کی آیت آپ نے پڑھی تو اسی وقت سجدہ کریں، بعد میں اگر آپ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ سبب ختم ہو گیا اس کا۔ بہت سارے لوگ سننے میں آتا ہے کہ وہ سارے سجدوں کو اکٹھا کر کے نماز پوری جب قرآن ختم ہو جاتی ہے ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، دھڑلے سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پورے سجدے کرتے ہیں، نہیں، یہ درست نہیں۔ جیسے سجدے کی آیت آئے اسی وقت سجدہ کریں، اگر فاصلہ لمبا ہو گیا تو پھر سجدے کی مشروعیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ شادی میں نکاح خوانی کے دوران الفاتحہ کہہ کر نکاح خوانی کرتے ہیں اور دولہے کو پھول کا ہار بھی ڈالتے ہیں، کیا ہم ایسی شادی کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ دونوں چیزیں تو درست نہیں ہیں۔ نکاح خوانی کے دوران الفاتحہ کہنا یہ سب بدعت ہے،
दूल्हे को फूल का हार डालना, ये भी बिदअत है। अब मसला यह है कि क्या ऐसी शादी में हम खाना खा सकते हैं? देखिए, ये हराम काम तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर खाने पर फातिहा पढ़ा गया हो तो उस खाने को तो नहीं खाएंगे। खाने पर अगर फातिहा पढ़ा गया हो तो उस खाने को नहीं खाएंगे। अलबत्ता फूल डाला गया, हार डाला गया, निकाह खानी में फातिहा खानी हुई, तो जो गांव के खास तौर पर नेक लोग होते हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिनको लोग कदर की निगाह से देखते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं, ऐसे लोगों को तो बिल्कुलिया इसी शादी में जाना ही नहीं चाहिए, ताकि लोग इबरत पकड़ें कि भाई हम भी अपनी शादी में करेंगे तो फलां मौलवी साहब नहीं आएंगे, फलां गांव के बड़े आदमी जो हैं, मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, रुतबे वाले आदमी हैं, वो भी नहीं आएंगे। तो ऐसा करना चाहिए। अलबत्ता अगर कुछ लोग जाके खा ले रहे हैं तो खाना तो हराम नहीं हुआ, खाना हराम नहीं हुआ, लेकिन ये बिदअत के काम करने की वजह से अगर कोई उस शादी में नहीं जाता है तो बहुत अच्छा काम करता है, ये सवाब का काम। खा लिया तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बचना चाहिए ऐसी शादियों में जाने से। एक सवाल ये है, क्या इमाम साहब इकामत कहकर नमाज अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल जायज है। इमाम साहब क्या है, अजान भी दें, इमाम साहब खुद इकामत कह के नमाज भी पढ़ाना चाहें पढ़ा सकते हैं, जायज है, कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि इमाम के अलावा कोई दूसरा मुक्तदी, कोई दूसरा आदमी इकामत करे, वरना इमाम कहकर इकामत अगर नमाज पढ़ाना चाह रहा है तो कोई हरज नहीं है, पढ़ा सकता है। अगर नमाज फज्र कज़ा हो जाए तो क्या सुन्नत भी कज़ा कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप सो गए, कोई शरई उज़्र रहा, आपकी फज्र की नमाज छूट गई और आप अब जैसे ही बेदार हुए या शरई उज़्र आपका खत्म हुआ, आप फौरन नमाज फज्र अदा करेंगे और साथ ही साथ सुन्नत की भी कज़ा करेंगे। अलबत्ता सुन्नत की कज़ा तो जरूरी नहीं, क्योंकि वो सुन्नत है तो जरूरी नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि फज्र की नमाज के साथ साथ सुन्नत की भी कज़ा की जाए। अगर रोजा रखने की ताकत नहीं है तो उसका कफ़ारा क्या है? अगर किसी इंसान को हकीकत में रोजा रखने की ताकत नहीं, आपके एतबार से नहीं कि भाई हमको बहुत परेशानी होती है रोजा रखने में, थोड़ी मोड़ी दुश्वारी चलती, भाई भूख का एहसास होना तकलीफ, प्यास का एहसास होना ये तकलीफ है, यही तो रोजा है मेरे भाइयों। ये नहीं कि थोड़ी मोड़ी तकलीफ हो रही है तो आप उसकी वजह से रोजा रखना छोड़ देंगे, आप कहेंगे नहीं मेरे अंदर रोजा रखने की ताकत ही नहीं। नहीं, रोजा रखने की ताकत ना होने का मतलब ये है कि आप अगर रोजा रख रहे हैं तो आपको शदीद मशक्कत लाहिक हो रही है, जब भी रख रहे हैं तब आपको हमेशा शदीद तकलीफ लाहिक हो रही है, या बीमार हैं बहुत ज्यादा, रोजा रखने की वजह से बीमारी और बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, या सख्त बीमार हैं शिफा याबी में ताखीर हो सकती है, तो आपको रोजा ना रखने की इजाजत है। लेकिन अगर बीमारी ठीक होने की उम्मीद है तो जब ठीक हो जाएंगे तो आपको उसकी कज़ा भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसी बीमारी है जिसके ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है, मसलन हाई लेवल का कैंसर हो गया, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, हाई लेवल का शुगर है, रोजा रखने में बहुत दुश्वारी हो रही है और ठीक होने की उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसी सूरत में वो आदमी क्या है, रोजा छोड़ देगा और हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को पेट भर के खाना खिलाएगा। हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को निस्फ सा, हदीस में जो है निस्फ सा, निस्फ सा क्या है, इतना पूरा भर के, दोनों हाथ भर करके दे दिया, ये निस्फ सा, यानी पेट भर के आप खाना खिला दिए तो एक रोजे का कफ्फारा ये हो जाए। ठीक है, और सिर्फ कफ्फारे में खाना ही गल्ला ही दे सकते हैं, या तो आप पका के खिलाएं, होटल से ला के खिलाएं, या गल्ला ही दें। पैसा अगर किसी ने दे दिया कफ्फारे में तो कफ्फारा अदा नहीं होगा, उसके जिम्मे वो बाकी रहेगा। तो सिर्फ खाना या गल्ला ही दिया जा सकता है,
पैसा नहीं दिया जा सकता है, कपड़ा लत्ता नहीं दिया जा सकता है, और दूसरी चीजें नहीं दी जा सकती। खाना होना चाहिए, गल्ला होना चाहिए। एक और सवाल, क्या तरावी में कुरान देखकर तरावी पढ़ा सकते हैं? देखिए, अगर जरूरत इसकी है, जरूरत महसूस हो रही है तो ठीक है, वरना आपके पास हुफ़ाज़ हैं, वो बगैर देखे कुरान तरावी पढ़ा सकते हैं। या खवातीन में भी कोई हाफिजा हैं या बहुत सारी सूरतें, कई पारे उनको याद हैं, तो बेहतर यही है कि वो हिफ्ज से ही नमाज और तरावी पढ़ाएं। अगर कोई हाफिज मैसर नहीं है या कोई ऐसा आलिम, कोई ऐसा इमाम मैसर नहीं है जिसको 2-4-10 पारे याद हो, तो ऐसी सूरत में अगर कोई कुरान देख करके, मुसहफ देख करके, हाथ में उठा करके कोई तरावी पढ़ाता है तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। तो आयशा के गुलाम ज़कवान कुरान देखकर उनको तरावी पढ़ाया करते थे, इब्ने सीरीन कुरान देखकर क़ियामुल लैल किया करते थे, हसन बसरी कहते हैं कोई हरज नहीं। बेशुमार इस तरह के आसार मरवी हैं, तो कोई हरज नहीं है, तरावी हो जाती है। लेकिन हमने कहा जब इसकी जरूरत हो तब। इस सवाल पे एक चीज हमको ये भी याद आ गई कि चंद लोगों को ये सुना गया है कि वो पीछे मुसहफ लेकर इमाम साहब की किरात सुनते हैं, देखते हैं। मुक्तदियों में से बाज लोग क्या है, कुरान उठाकर देखते रहते हैं। ये बिल्कुल जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं है कुरान उठाकर देखना की। इमाम पढ़ रहा है, देख के पढ़ रहा है, हिफ्ज से पढ़ रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन मुक्तदी ये कहो कि कुरान उठा के देखता रहे, सफा पलटता रहे, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इससे बाज आना चाहिए। अगर कहीं भी इस तरह की गलतियां की जा रही हैं तो लोगों को इस तरह की गलतियां और खताएं छोड़नी चाहिए। खलास। एक सवाल यह है कि क्या रफुल यदैन ना करने पर भी नमाज मुकम्मल होती है? सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रफुल यदैन चंद दिनों के लिए किया, बाद में छोड़ दिए थे। आपने जो सुना है गलत सुना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज में भी, बाद में छोड़ने की बात नहीं, किसी एक नमाज में, पूरी जिंदगी में किसी एक नमाज में रफुल यदैन छोड़ना साबित नहीं। अगर कहीं कोई रिवायत है भी तो रिवायत सख्त ज़ईफ है। कोई हदीस सही ऐसी नहीं है जिसमें इस बात का जिक्र हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज में, एक वक्त में, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, या तकबीर तहरीमा के वक्त, या तीसरी रकात के उठने के लिए रफ़े दैन छोड़ा। एक भी रिवायत कहीं इस तरह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी रफ़े दैन किया है, आखिरी वक्त तक आपने रफ़े दैन किया। वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी में इस्लाम लाने वाले हैं। आप खुद कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, तीसरी रकात से उठते हुए हमने रफ़े दैन करते हुए देखा। कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े दैन छोड़ा नहीं है। बल्कि बाद साहबा अब्दुल्लाह बिन उमर अगर किसी को देखते थे कि रफ़े दैन में कोताही करता तो उसको कंकर से मारते थे, नमाज ही की हालत में मार देते थे उसको, ये नबी की सुन्नत छोड़ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में एक बार भी रफ़े दैन नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। अब नमाज मुकम्मल होगी या नहीं मुकम्मल होगी आप समझे। आप नबी की सुन्नत छोड़ रहे हैं, ये नबी की नमाज नहीं। अगर कोई रफ़े दैन नहीं करता है तो गोया कि वो नबी की नमाज नहीं पढ़ रहा है, नबी की सुन्नत छोड़ रहा है। और आप समझें कि हम अगर नबी की सुन्नत छोड़ेंगे तो हमारी नमाज मुकम्मल होगी या नाक़िस होगी, आप खुद समझते हैं। चंद अफराद टखने से नीचे पैजामा पैंट कर कर नमाज अदा करते हैं, क्या ऐसे मुताल्लिक कोई हदीस मौजूद है? देखिए, टखने से नीचे इजार हो, तहबंद हो, पैंट हो, जींस हो, कोई भी कपड़ा टखने से नीचे लटकाना नमाज के अंदर भी जायज नहीं है और नमाज के बाहर भी जायज, किसी भी सूरत में जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टखने से नीचे जो कपड़ा लटकाता है इंसान का वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में चलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन जर्रा इज़ारहू,
खुयला, जो शख्स अपने कपड़े को, अपने इजार को टखने से नीचे लटकाता है, तकब्बुर के खातिर हो या गैर तकब्बुर, अल्लाह उसकी तरफ कल क़यामत के दिन नहीं देखेगा। अल्लाह उसकी तरफ कल क़यामत के दिन नजर रहमत से नहीं देखेगा। बहुत बड़ा गुनाह मेरे भाई, बड़ा गुनाह है। लिहाजा कपड़े से टखने से नीचे कपड़ा मर्द हजरात ना लटकाएं। औरतों के लिए वाजिब है कि वो अपना टखना छुपाएं। औरतों पर इसके बरक्स औरतों का टखना, पिडली, पैर का, कदम का हिस्सा दिखना नहीं चाहिए, हराम है दिखना। वाजिब है कि वो अपने पूरे कदम को छुपाएं। लेकिन मर्द हजरात के लिए वाजिब क्या है कि वो अपने टखने को ना ढकें, टखने से ऊपर कपड़ा रखें। ठीक है, हर हालत में, नमाज में भी हो, नमाज के बाहर हो, किसी भी सूरत में टखने से नीचे कपड़ा नहीं लटका सकते हैं। अलबत्ता कहीं कपड़ा नीचे आ गया सड़क के तो आप ऊपर कर लें, तो उस वईद में ये इंसान दाखिल नहीं है। जानबूझ के जो कपड़ा उसी तरह पहनते हैं, लटकाते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि कल क़यामत के दिन वो हिस्सा आदमी का जहन्नम में होगा। वो बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाएगा। खलास, लाइए जल्दी लाइए। किसका वसीला? किसी भी इंसान का वसीला लेना ये शिर्क है। वसीला सिर्फ तीन चीजों का लिया जा सकता है। अल्लाह के अस्माए हुस्ना, जो सिफात हैं, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह की सिफात हैं, उनका वसीला लेकर आप दुआ करें। मसलन कहें या गफ्फार इग़फिरली, ऐ बख्शने वाले मुझे बख्श दे। या रहमान इरहमनी, ऐ रहम करने वाले मुझ पर रहम फरमा। या तव्वाब अजिब तौबती, ऐ तौबा कबूल करने वाले मेरी तौबा कबूल कर ले। तो इस तरह अल्लाह के जो नाम हैं, अच्छी सिफात हैं, उनका वसीला ले सकते हैं। दूसरी बात, अपने जो नेक आमाल है, हम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह अगर ये मैंने नमाज तेरे रजा के खातिर तेरे लिए पढ़ा है, तो अल्लाह ये मेरा फला काम कर दे। जैसा कि वो गार में तीन लोग बंद हो गए थे ना, चट्टान बंद हो गई थी, सबने अपने अपने नेक अमाल का वसीला दिया। अल्लाह मैंने अपने माँ बाप को जो दूध पिलाया, अपने बच्चों को नहीं पिलाया, अगर तेरी रजा के खातिर अल्लाह मैंने ऐसे किया है तो ये चट्टान हटा दे। नेक अमल का वसीला लिया, नेक अमल का वसीला लिया। तो इस तरह अपने नेक अमल का वसीला ले सकते हैं। तीसरी चीज, कोई जिंदा आदमी हो, नेक हो, बुजुर्ग हो, मुत्तकी हो, उसकी दुआ का वसीला ले सकते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कर। जैसा कि सहाबा साहबियात अल्लाह के नबी के पास आते थे ना, अल्लाह अल्लाह के नबी मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह के नबी मेरे माँ के लिए दुआ कर दीजिए। तो गांव का जो नेक आदमी है, जिंदा आदमी हो, सामने मौजूद हो, उससे आप दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी किस्में वसीले की हैं, सब नाजायज और हराम हैं, शिर्क है। ठीक है, इसके अलावा कोई वसीला जायज नहीं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में देवर वगैरह रहते हैं, ऐसी सूरत में उसका क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? वो जितना मुमकिन हो सके बचें, और क्या कर सकते हैं? जितना मुमकिन हो सके आप बचें, उनसे बात करने से बचें, उनको देखने से बचें, उनके साथ तन्हाई अख्तियार करने से बचें। जितना मुमकिन हो सके उतना आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि उससे बचे। समझ रहे हैं? औरत को भी और आदमी को भी, दोनों को। समझ रहे हैं? ये नहीं कि भाभी बच रही है, देवर साहब नहीं बच रहे हैं। दोनों को बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अलहमु अल मौत, देवर ये मौत के मानिंद। समझ रहे हैं? बेशुमार फैमिली में तरह तरह के मसाइल आप सुनते रहते हैं, क्या क्या मसाइल पेश आए। तो जितना मुमकिन हो सके एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे के देखने से, एक दूसरे के साथ उठने बैठने से, एक दूसरे के साथ सफर करने से, जितना मुमकिन हो सके आदमी को बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए।
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔